Hello dear student, this is Durgesh Phatak from PN National Public School. Today in this video tutorial we are going to solve science question paper of biology unit. So first question in biology, in human being the implantation of fertilized egg takes place in which part of female reproductive system? You know that beta, this is the structure of female reproductive system. This is the structure of female reproductive system in which this part, this endometrium layer, this is endometrium layer, and here ovaries connected with mesothelium. Now when after menstruation egg release inside the fallopian tube, and sperm after sexual reproduction sperm get fertilized to this ova or female egg, then that particular egg and sperm combination will convert into beta zygote, a unicellular structure known as zygote. And zygote consists male gamete plus female gamete. So point is that male gamete contain 22 plus X, one gamete, and 22 plus Y. In the case of female, 22 plus X, only one type of gamete will be produced by female. When this Y bearing sperm and female, you already know the only one type of gamete will be produced, both will fuse together, they will form 22p plus xy. It means future child, the fetus or baby that will grow in the womb of mother will be the future male child. Or you can also write 44 plus xy in the case of male child beta. So point is that the question is asked, from where, which place inside the uterus the particular zygote will be implanted and further develop into a baby or fetus. So implantation occurs at this particular position beta, at this particular position. It means on endometrium wall of uterus, endometrium wall of यूटरस. तो ऑप्शन में आप देख सकते हो, यू कैन सी यूटरस, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो फर्स्ट का क्या हो जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट बेटा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is yeast multiply by which of the following method beta? You know that there are various method of asexual reproduction, and in yeast follow budding method. Which method? Budding method beta, budding method. ईस्ट कौन सा फॉलो करेगा? बडिंग मेथड. मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि आप जो स्ट्रक्चर है ईस्ट का, समथिंग लाइक दैट बेटा, समथिंग लाइक दैट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट एंड देयर इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेप्टाज आर देयर, मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम आर देयर, एंड दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम. व्हाट? स्पोरेंजियम बेटा. And in this sporangium consist spores. So budding वाली जो ग्रोथ होती है, यही जब टूटेगा या कोई भी पार्ट, बॉडी पार्ट यहाँ से टूट के अलग हो गया, यहाँ से टूट के अलग हो गया, तो कोई भी बॉडी पार्ट क्या करेगा? न्यू ईस्ट को डेवलप कर देगा. ईस्ट माने सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी. ओके, क्लियर. कौन सी क्लास का फंजा ये है?
एस्कोमाइसिटीज, खैर वो आपके स्तर का नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आप स्टोमेटा तुरंत बना लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ऐसे स्टोमेटा आप बना लीजिए। एंड हियर इज सम गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। These guard cell responsible for closing and opening of stomata by influx of potassium and sodium ions. Clear? By influx of potassium ions. This called guard cell. तो जो guard cell है बेटा, वो guard cell क्या करती है? Guard cell ये स्टोमेटा के ओपनिंग को कंट्रोल करती है। थर्ड का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? Next, choose the equation of reaction that correctly represent anaerobic respiration in muscle. Anaerobic respiration in muscle का मतलब क्या होगा? Anaerobic respiration in muscle means you know that beta, one basic metabolic process of carbohydrate metabolism is glucose will be breaking down into 2 molecules of pyruvate। समझिएगा बात को, ग्लूकोज में 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसके पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। The reaction, that particular reaction will occurs in all living organism, either it is a prokaryote, eukaryote, unicellular, multicellular, whatever type of organism beta. This basic metabolic reaction occurs in all type of living organism. So here the metabolic reaction named as glycolysis process beta, and after the glycolysis this pyruvate will have 3 approaches on the basis of oxygen. This pyruvate further doing metabolic reactions na, but this particular pyruvate have 3 approaches. First is lack of oxygen, second is absence of oxygen, and third is presence of yani sufficiency of oxygen. But in anaerobic respiration in muscle, the point is in muscle, तो मसल में ऑक्सीजन की कमी होगी। जैसे जब आप रनिंग करते हो, जब आप दौड़ते हो, जब आप वर्कआउट करते हो, तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है ना, बार बार बहुत ज़्यादा सांस लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि योर बॉडी डिमांड ऑक्सीजन, मोर एंड मोर ऑक्सीजन, आपके बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग एनर्जी में आते हैं, सीधी सी बात है। तो इस रिएक्शन को मैंने आपको पढ़ाया था कि पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्दर यहाँ पे इन मसल में लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड। और क्या बना देगा? ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। और एनर्जी, हाँ, यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो होगा बेटा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। याद करिए आप लोग, यहाँ पे जो एंजाइम होगा क्या होता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। सो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन विल बी डी, करेक्ट। क्लियर गाइज? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स? पेपर बायोडिग्रेड हो जाएगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन एबल टू डिग्रेड इट, वुड भी डिग्रेड हो जाएगा, वेजिटेबल पील यानी सब्जियों के छिलके वगैरह ये सब डिग्रेड हो जाएंगे। बस DDT है ये नहीं डिग्रेड होगा। और यही था, यही DDT का जब छिड़काव हो रहा था खेत में एज ए पेस्टिसाइड, जब DDT को यूज किया गया, तो इसको जब रूमिनेंट्स खाना शुरू किए, जब इसको रूमिनेंट्स खाएं, उस घास को जब रूमिनेंट्स खाएं, तो ये रूमिनेंट्स को, जो फर्दर घास को रूमिनेंट्स खाएं, फिर रूमिनेंट्स जब एक्सपायर हुए तो उनको वल्चर खाएं, बिकॉज वल्चर आर गुड स्कैवेंजर, एंड सो दैट वल्चर बिकम एक्सटिंक्ट बेटा और एंडेजर्ड, एक्सटिंक्ट और एंडेजर्ड कंडीशन में आ गए हैं। ठीक है, इसी DDT के कारण। ठीक,
नेक्स्ट आते हैं ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन, अभी आएगा फर्दर पेपर में, बात डिस्कस करेंगे उस पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन a human egg fertilized by sperm having Y chromosome, as I told you in the first question, when human egg is fertilized by sperm having Y chromosome, the zygote has following combination. So what type of combination? You know that beta, male gamete and female gamete. In the case of human, male gamete produce two type of gamete, 22 plus. Actually I will start it from basic level, from base 22p plus XY. This chromosomal combination every man, every human consists, and in the case of female 22p plus XX. This combination every female of human female contain. So when they will produce gametes, so they will go through what for meiosis approach or meiosis type of cell division, because meiosis considered as a reductional. तो अब ये दो गैमेट बनाएगा 22 प्लस X वाला, और एक गैमेट बनाएगा बेटा 22 प्लस Y वाला. बट इन द केस ऑफ फीमेल ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट 22 प्लस X विल बी प्रोड्यूस. अब क्या हुआ कि मेल में स्पर्म्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ स्पर्म में, अगर उस स्पर्म में 22 X बियरिंग स्पर्म जो है वो फीमेल में एक ही टाइप का गैमेट है 22 प्लस X, तो फीमेल के गैमेट से अगर मेल का 22 प्लस X वाला फ्यूज कर जाता है तो यहां पे क्या हो जाएगा 22p प्लस XX, या आप इसको 44 प्लस XX कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो. तो ये फीमेल प्रोड्यूस हो जाएगी, ये फीमेल बेबी होगी. ठीक है, ये फीमेल बेबी होगा. वहीं पे आ जाते हैं बेटा कि अगर ये वाला स्पर्म 22 प्लस Y बियरिंग स्पर्म अगर फीमेल गैमेट से फ्यूज कर गया तो यहां पे हो जाएगा 22p प्लस XY. इसको और भी आप लिख सकते हो 44 प्लस XY, और ये क्या हो जाएगा मेल बॉय हो जाएगा, मेल या बेबी बॉय हो जाएगा, बेबी बॉय हो जाएगा. तो यही कॉम्बिनेशन पूछ रहा है. तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 44 प्लस XY. इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट आते हैं द रीजन ऑफ एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्ट. द रीजन ऑफ एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्ट, सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेशन जनरेट होने का या आज के जमाने में रीजन क्या है पर्टिकुलर. तो पहला है 7th का पहला ऑप्शन में पहला है यूज एंड थ्रो पॉलिसी. दूसरा है इंक्रीज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पैकेज्ड फूड. पैकेज्ड फूड ज्यादा हो रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट होगा, मैं करेक्ट ऑप्शन बस लिख रहा हूं. थर्ड है इंक्रीज द कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ये भी सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है. These three approaches responsible for excessive generation of waste material. नॉन सॉर्टिंग ड्राई वेट वेस्ट, ये सब जो हैं ये डिग्रेड हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वेस्ट प्राइमरी 3 कॉजेज हैं जिससे प्रोड्यूस होते हैं. तो 7th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. क्या है 7th का ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट. द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट असर्शन पूछा है. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, असर्शन है. असर्शन में पूछा है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट. पेरिस्टालिसिस मूवमेंट ये गट में होती है, ओवरऑल गट में होती है, ओवरऑल गट में होती है. गट माने जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल भी हम कहते हैं, इसमें होती है. अब पूछ रहा है फिर रीजन क्या दे रहा है कि द लाइनिंग ऑफ गट हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश द फूड इन रेगुलर मैनर. तो ये है बेटा, अब आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं मसल्स का लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, दो टाइप की मसल्स होती हैं.
तो ये दोनों मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। तो रीजन में जो जिस मसल्स की ये बात कर रहा है उसमें दो मसल्स हैं, एक है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और एक है सर्कुलर मसल्स। तो ये दोनों मसल्स गट की पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को रेगुलेट करती हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ करेक्ट है। और आर किसका है, आर रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, असर्शन का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरे में आते हैं 9 का आते हैं बेटा। 9 में कह रहा है बैक्टीरिया प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वुड बी सिमिलर। रीजन कह रहा है देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंसेस बिटवीन द बैक्टीरिया जनरेटेड ड्यू टू द स्मॉल इनएक्यूरेसी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फ्यूजन करता है। बैक्टीरिया के भाई डिवाइड होने के कई अप्रोचेस हैं, तो जैसे 3 टाइप का, ए सेक्सुअल भी कर लेगा, पैरासेक्सुअल भी कर लेगा। पैरासेक्सुअल में ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ये सब आएगा, सब फ्यूचर में आप पढ़ेंगे। लेकिन बैक्टीरिया का बेसिक जो डिवीजन है वो बाइनरी फ्यूजन कर देता है। तो बाइनरी फ्यूजन में डीएनए का अमाउंट भी क्या है, डीएनए का अमाउंट क्या होगा, वो चेंज होगा ना भाई। एक बैक्टीरिया है तो अपने डीएनए के अमाउंट को डबल करेगा तब ना 2 बैक्टीरिया बनाएगा। तो देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी माने क्या, जो एक बैक्टीरिया ये है, ये डिवाइड होकर ये दूसरी बैक्टीरिया बनाया, तो ये डिवीजन कर रहा है, तो इसमें जो डीएनए होगा सेम डीएनए इस बैक्टीरिया में जाएगा। उसी बात को ये कह रहा है कि दोनों बैक्टीरिया में सेम जाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल पैदा करता है। वो जेनेटिकली क्या पैदा करता है, आइडेंटिकल पैदा करता है। और इसीलिए बेटा असर्शन जो है रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बहुत माइनर सी चेंजेस आ सकते हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से बिल्कुल सटीक जेनेटिक मटेरियल सेम ही रहेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही रहेगा। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। रीजन किसका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, असर्शन का करेक्ट। तो इसका भी ऑप्शन ए भी हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। ऑब्जर्व करिए जो डायग्राम दिया हुआ है, आप जानते हैं रिफ्लेक्स आर्क है ये, और उसमें PQRS ये 4 को मार्क करना है। तो ये हुआ P, तो मैं उसको सीधे मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन सा है। तो जो P है बेटा, जो P है, ये P क्या है, ये P है रिसेप्टर्स। क्या होंगे, रिसेप्टर्स। भाई फिंगर के जो रिसेप्टर्स हैं, और गर्म चाय छू रहा है तो फिंगर में जो रिसेप्टर होंगे वही फील कराएंगे ना। अब जब उसने टच किया तो देखो तीर उधर साइड में मारा है, यानी तीर कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मारा है। तो क्यू वाला क्या हो जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स, उसने फील कराया। तो क्यू के लिए क्या आप लिखोगे, सेंसरी न्यूरॉन्स लिखोगे, नहीं लिखोगे सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद आ जाएगा बेटा जब क्यू चला गया सिग्नल, अब यहाँ पे दिया सिग्नल को, ये ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है। आप जानते हो स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में सभी के सभी न्यूरॉन का जो हेड होता है, साइटॉन होता है, सेंटर में होता है, इसीलिए सेंटर में ग्रे मैटर दिखाया है, और ब्रेन में उसका जस्ट अपोजिट है। तो आप यहाँ देखोगे ये क्यू वाला न्यूरॉन आया, सेंसरी न्यूरॉन, और ग्रे मैटर में गया, फिर ग्रे मैटर से फिर दूसरा न्यूरॉन निकलता है और वो यस वाला आता है। तो क्यू के बाद PQR, आर वाला, आर क्या है, आर क्या है, रिले न्यूरॉन है। क्या है, रिले न्यूरॉन, ग्रे मैटर में, किसमें, ग्रे मैटर में बेटा, ग्रे मैटर का। अब इसके बाद ये यस जो है PQRS, यस क्या है, मोटर न्यूरॉन है। क्या है, मोटर न्यूरॉन है। क्लियर? तो आर को आप कह दिए ग्रे मैटर, यस को कह दिया आप मोटर न्यूरॉन, क्यू को कह दिए सेंसरी न्यूरॉन, इसको कह दिए रिसेप्टर्स।
तो इसका जो ऑप्शन हो, ऑप्शन नहीं बस मार्क करना था तो यही होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिव फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो कौन कौन सा प्लांट हार्मोन किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम देख लेते हैं बेटा। जैसे पहला कह रहा है ये 10 का बी, 10 का जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें पहला कह रहा है प्रमोट सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन को कौन प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। दूसरे पे आ जाते हैं, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को इनहिबिटरी हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड, यही है ना, एब्सिसिक एसिड करता है। फिर आ जाते हैं डिटेक्शन ऑफ लाइट। देखो बेटा फोटोट्रॉपिज्म, डिटेक्शन ऑफ लाइट यानी फोटोट्रॉपिज्म को शो करने वाला हार्मोन का नाम है ऑक्सीन। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑक्सीन लिखोगे। ठीक। और जो फोर्थ वाला है बेटा वो है विल्टलिंग ऑफ लीफ, ये भी एब्सिसिक एसिड ही है, एब्सिसिक एसिड ही है। ठीक है, तो ये भी एब्सिसिक एसिड हो गया, ये हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कह रहा है डबल सर्कुलेशन को आप समझाइए। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप सिंपल सी 4 चैम्बर ऐसे बना लीजिए, 4 चैम्बर ऐसे बना लीजिए और इसको बना लीजिए, समझिए कि आपने बना दिया लंग्स, ये आपने लंग्स बना दिया बेटा और ये चैम्बर्स बना दिए। क्लियर कट आप समझ जाइए, बहुत ही इजी स्टेप है। मैं आपको डबल सर्कुलेशन बिल्कुल आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ। और अब आप यहाँ पे कुछ मसल की सेल्स, एक्सक्यूज मी, कुछ मसल्स की सेल बना दीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारी मस्कुलर सेल्स हो गई, सिंपल सा समझिए। अब क्या हुआ कि ये हमारा बेटा फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गए, ये है हार्ट। हार्ट डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर गाइस। अब आपने इसको कह दिया राइट आर्ट्रियम, इसके नीचे राइट क्यों कहा गया, मैं इस साइड में खड़ा हूं, ठीक है। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। नाउ अब पूरे बॉडी से, मैंने ये बॉडी में सेल्स कुछ बना दी, अब पूरे बॉडी से बेटा हम 2 टाइप का नर्व बनाएंगे। एक नर्व को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ग्रीन कलर से, तो उसको आप समझिएगा, एक ये ब्लड वेसल्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ग्रीन कलर से, उसको आप वेन समझिएगा, और एक को रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, उसको आप क्या समझेंगे, आर्टरी समझेंगे। तो पहले बता दे रहा हूं, अब क्या है, पूरे बॉडी से ब्लड कहां आएगा, राइट आर्ट्रियम में। किससे आएगा, पूरे बॉडी से ब्लड कहां आएगा, पहले राइट आर्ट्रियम। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजिनेटेड है। कौन सा है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है। अब यहां पे मैंने बताया था कि सुपीरियर वेना कावा है, एसवीसी, सुपीरियर वेना कावा है, उसके थ्रू राइट आर्ट्रियम में ब्लड आ जाएगा। सभी के सभी चैम्बर्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार रिलैक्स करेंगे। 0.4 सेकंड के लिए सभी चैम्बर्स एक साथ रिलैक्स करेंगे। अब राइट आर्ट्रियम से यहां पे आर और टी ऐसे याद करने के लिए कहा था, तो 1 2 3 ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व से यहां से जो ब्लड है, ये ग्रीन वाले को ब्लड समझिएगा, ब्लड यहां मूव करके गया राइट वेंट्रिकल। अब यहां से फिर जो दूसरी मैं आर्टरी रेड कलर में बनाने जा रहा हूं, अब फिर यहां पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, लंग्स में, फेफड़े में। तो राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड फेफड़े में गया तो किस वाल्व के थ्रू गया, सेमी ल्यूनर वाल्व, यह सेल भी बताया था, सेमी ल्यूनर वाल्व। सुपीरियर वेना कावा ऐसे ही यहां नीचे भी होता है, ऐसे यहां नीचे भी होता है इन्फीरियर वेना कावा, यहां क्या होता है, आईवीसी, इन्फीरियर वेना कावा, दोनों इसी चैम्बर में ओपन होते हैं, चाहे सुपीरियर की वाल हो
चाहे इन्फीरियर की, सब मैं आपको बहुत विधिवत पढ़ाया हूँ कई बार। राइट एट्रियम ओपन होंगे, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से सेमी ल्यूनर वाल्व के थ्रू लंग्स में जाएगा। तो अब सेमी ल्यूनर वाल्व के थ्रू लंग्स में जाएगा तो ये कौन सी आर्टरी होगी? ये पल्मोनरी आर्टरी है। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। देखो इसीलिए ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, लेकिन आर्टरी है तो मैं उसे रेड से दिखा दिया हूं। लेकिन इसमें ब्लड कौन सा फ्लो कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, यही ब्लड है, यहां से एंटर लिया, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी इज ओनली वन आर्टरी दैट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 रिच ब्लड। अब यहाँ पे फिर आप ब्रीदिंग किए, जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद अब ये ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा? लेफ्ट लंग्स में आएगा। पल्मोनरी वेन के थ्रू, अभी मैं इसको एकदम क्लियर कट बना दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, और लेफ्ट आर्ट्रियम से यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है बेटा, बाइकस्पिड वाल्व से वो ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड हो गया ना, इसलिए इस कलर का बना रहा हूं। वो ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सीधा पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसके थ्रू होगा? अरोटा के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू होगा? अरोटा के थ्रू। अब आपको इसको इंडिकेट करना है, लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि 2 नंबर में पूछा है। लिखना कैसे? आप लिखेंगे ऐसे, आप लिख देंगे ब्लड, तो ब्लड आया, ब्लड कहाँ से आया? डीऑक्सीजन, CO2 रिच ब्लड, तो ऐसे मैं CO2 कर दूंगा तो CO2 रिच ब्लड समझिए। CO2 रिच ब्लड आया, कहाँ से आया? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से। कहाँ गया बेटा? राइट आर्टरियम में। ऐसे आपको एक सिमेट्रिक डायग्राम रिप्रेजेंट कर देना है, उससे ही आपको नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ से ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, TCV, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड यहाँ गया। अब इसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया बेटा? फेफड़े में गया, लंग्स में गया, ठीक। और लंग्स से ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरे होल बॉडी में जाएगा। कहाँ जाएगा? होल बॉडी में चला जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा बेटा? अरोटा के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा? अरोटा के थ्रू। तो ये है डबल सर्कुलेशन। डबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड एक बार हार्ट में जा रहा है, हार्ट टू बॉडी जा रहा है, और एक बार हार्ट टू लंग्स जा रहा है, हार्ट टू लंग्स जा रहा है। इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जो हार्ट टू बॉडी गया उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और जो हार्ट टू लंग्स गया उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, तो वैसे ही पल्मोनोलॉजिस्ट यानी वो फेफड़ा ही सिर्फ देखेगा, तो वैसे ही 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है, या ब्लड 2 जगह एंट्री लेता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको डबल सर्कुलेशन। क्लियर गाइस? नेक्स्ट आते हैं 12th पे। कह रहा है क्रॉस सेक्शन लीफ का दे दिया है, सीधा सीधा पूछ रहा है कि, हाँ पहला क्वेश्चन पूछा आइडेंटिफाई P इन ए गिवन डायग्राम, राइट डाउन इट्स रोल। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 पे फर्स्ट आ जाते हैं। जो P है, जो P है वो है मीजोफिल सेल। कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल। और इसका रोल क्या है? प्लांट के लीफ के मीजोफिल सेल में बेटा, अब मीजोफिल सेल 2 टाइप की होती हैं। वो पहली सेड वाली है, वो सेल लंबी है तो पहली सेड वाली है, और ये स्पॉन्जी है, सर्कुलर है तो स्पॉन्जी है, तो पहली सेड है। यहां पे ऐसे कर लेना, वो पहली सेड सेल्स है, पहली सेड मीजोफिल सेल्स, ठीक है। तो मीजोफिल सेल में के क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? इसके क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा बेटा? फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। अब
दूसरे वहीं पे तुरंत नीचे कहा है कि आप बैलेंस एक इक्वेशन लिख दीजिए। तो देखो फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक इक्वेशन होता है वो होता है कि आपने CO2 ले लेना है और आपने बैलेंस लेकिन पूछा है, लेकिन मैं बेसिक इक्वेशन अभी आपको बता रहा हूँ। CO2 लेना है, H2O ले लेना है। अब इसको आप ऐसे यहाँ पे सनलाइट लगा दो, हम सन लिख दे रहे हैं, सनलाइट ही लेंगे, और क्लोरोफिल लगा दो। अब बनेगा क्या, तो CH2O पे पावर n कर देंगे। ये कार्बोहाइड्रेट का बेसिक एम्पिरिकल फार्मूला है। तो ये बनेगा और इसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन आया नहीं है कहीं से, ऑक्सीजन प्लांट ने बनाया है, ठीक, इसीलिए इतनी प्रीसियस गैस है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये बेसिक। अब उसने कहा है कि बैलेंस लिखना है तो बैलेंस कर दीजिए इसको आप। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, अब यहाँ पे आप बैलेंस इक्वेशन हम दूसरे कलर से लेते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पे ऐसे लिखना सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल। अब आप लिखेंगे C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O। अब देखिए आप यहाँ पे 12H2O लिए हैं तो यहाँ ट्रांसपायरेशन वाला H2O निकालेंगे। अगर यहाँ 6 लिए होते तो वहाँ H2O नहीं ऐड करते आप, क्योंकि आप उतना ही H2O लिए हैं जितना यूटिलाइज हुआ है। तो ये यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए ट्रांसपायरेशन वाला ये O2 निकला है, और यहाँ लिख दीजिए ऐसे कि ये एटमॉस्फियर में चला जाएगा ऑक्सीजन ATM, और यहाँ लिख दीजिए ग्लूकोज यानी एनर्जी सोर्स, और यहाँ पे लिख दीजिए H2O कहाँ से लिया है, जाइलम टिश्यू के थ्रू लिया है। किससे लिया है बेटा, जाइलम से। और चाहे वो वाटर से ले, चाहे अगर ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स है यानी पानी के अंदर पाया जाने वाला पौधा है, वो H2O से भी ले लेगा, और टेरेस्ट्रियल है तो सॉइल से ले लेगा। अब आते हैं CO2। CO2 कहाँ से लेगा, एटमॉस्फियर से लेगा। किसके थ्रू लेगा, दो अप्रोचेज हैं, एक तो स्टोमेटा के थ्रू ले सकता है, लेकिन हैंगिंग रूट्स भी होती हैं, और भी जो नदी के किनारे के प्लांट्स होते हैं वो लेंटिसल्स के थ्रू लेते हैं। सर्पगंधा वंधा देखे होंगे, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं पूरे स्टेम में, उसके थ्रू भी लेते हैं। तो ये एक बेसिक हो गया। तो पहला वाला और एक दूसरे वाले का आंसर ये हो गया। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आते हैं, मेंशन एनी वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग ऑन इन्वायरमेंट सजेस्ट द बेटर अल्टरनेटिव्स टू द यूजेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो देखो प्लास्टिक का सबसे बिगेस्ट जो वन एक ही पूछा है तो एक बता दे रहे हैं हम लोग, 13 का ए। उसे पूछा क्या है बेटा कि प्लास्टिक बैग का कोई हार्मफुल इफेक्ट बताया। सबसे बड़ा ये नॉन डिग्रेडेबल होता है, नॉन बायो या कैसे भी उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, नॉन बायो डिग्रेडेबल होता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होने के कारण क्या है कि वो डिग्रेड होगा नहीं। तो जब डिग्रेड सड़े गलेगा नहीं तो सबसे बुरी बात कि सॉइल पॉल्यूशन कर रहा है, और सॉइल से हम लोगों को क्या मिलता है, मिट्टी में ही तो अनाज होगा। तो सॉइल पॉल्यूशन कर रहा है। उसके बाद डिफरेंट के केमिकल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं, तो उनसे एयर में डिफरेंट के केमिकल घुल जाते हैं। ये टेम्परेचर जब सनलाइट पड़ती है इवेपोरेटर घुल जाते हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज के समय में सबसे बड़ा खतरा तो प्लास्टिक ही तो है, और सभी पैकेज्ड फूड ही खा रहे हैं सब। तो सबसे बुरी बात है कि पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल करना। अब कोई कह रहा है कि कोई अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ बताइए जिससे हम प्लास्टिक्स को अवॉइड कर सकें। तो ये हार्मफुल इफेक्ट में ये कर देना। उसके बाद जब सॉइल पॉल्यूशन होगा और वाटर पॉल्यूशन होगा तो इन दोनों से क्या होगा कि इनसे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा एनिमल्स लाइफ पे, एनिमल्स और इससे प्लांट एनिमल सब पे डायरेक्ट इफेक्ट है, सबके लिए हार्मफुल है ये लोग। ठीक। अब कोई अल्टरनेटिव में आप कह सकते हो कि आप कॉटन बैग ले लो। अब मेरे हिसाब से तो यही सही है, कॉटन बैग ले लो। जूट का बैग यूज करो, जूट बैग यूज करो। आजकल पेपर का बैग आ गया है,
पेपर बैग या कप प्लेट, आप सिटी मॉल में जाते होगे शॉपिंग करने तो मिलता होगा, शादी ब्याह में जाते होगे तो कप प्लेट आपको पेपर का मिल रहा है, तो थोड़ा कॉन्शियस तो है हम लोग इन्वायरमेंट को लेके। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है। अब देखो 1.5 नंबर का है, 1.5 नंबर में इतना डेटा आपने सफिशिएंट दे दिया। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर बी, पैडी फील्ड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, द पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर यूज्ड आर वॉश डाउन इनटू द सॉइल और वाटर बॉडीज। हाउ डू दीज केमिकल रीच आवर बॉडीज, व्हाट इज दिस फिनोमिना नोन एज। बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो 13 का बी ये कह रहा है 13 का क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है बेटा कि जो हार्मफुल केमिकल हैं वो हमारी बॉडी में कैसे आ जाते हैं। पैडी फील्ड में जो हार्मफुल, पैडी का एग्जांपल ले लिया है। देखो अब धान का मान लो खेत है, सिंपल सा समझो बात को, बहुत आसान सवाल है। धान का खेत है और धान के खेत में आपने क्या मार दिया, पेस्टिसाइड मार दिया। क्या मार दिया, पेस्टिसाइड मार दिया। अब धान के खेत में एक तो जो पेस्टिसाइड आप मारे हैं उसका कुछ पार्ट धान भी अवशोषित करेगा, जो पेस्टिसाइड मारे हैं उसका कुछ पार्ट धान भी अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बात को समझिएगा। और धान के खेत में मछलियां पाई जाती हैं तो कुछ पार्ट उस पेस्टिसाइड का फिशेस भी खा लेंगी, या कोई जो भी जू प्लैंक्टॉन्स हैं, जो जू प्लैंक्टॉन्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं इसका। जू प्लैंक्टॉन्स माने जल में पाए जाने वाले जीव, वाटर में पाए जाने वाले जीव। तो पेस्टिसाइड में पैडी और फिश। अब क्या है कि आप ह्यूमन हो, आप फिश भी खा लिए और आप पैडी भी खा लिए। तो मान लीजिए कि पैडी फील्ड में आपने कोई केमिकल मारा था जो आपके लिए हार्मफुल है। मैं मरकरी का सबसे ज़्यादा ये दिखता है और आर्सेनिक का भी दिखता है, तो चाहे आप Hg ले लीजिए चाहे AS ले लीजिए इन सब का। अब मान लीजिए यही सब आप फील्ड में मारे और फील्ड में पैडी में गया, धान ने अवशोषित किया, अब धान से चावल लिए, चावल को बना के खाए, मछली खा लिए, जो भी। अब ये केमिकल आपके बॉडी में एक ट्रॉफिक लेवल द्वारा, फूड चेन द्वारा ट्रांसफर हो गया। तो अब ये फूड चेन द्वारा या ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर हो गया, तब फाइनली आपके बॉडी में आ गया। तो ये अप्रोचेज द मूवमेंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। अब आप यहां पे लिखोगे, जब इसको लिखोगे आप तो लिखोगे मूवमेंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स टू ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। बेटा कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, उसी के बारे में कह रहा है। बस थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर। तो यही है आपका इसको हम फिर से सही कर दे रहे हैं, जो प्लैंक्टॉन्स। ठीक, तो इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में ए पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पूछ रहा है, मेंशन द ग्लैंड एंड हार्मोन सीक्रेटेड बाय स्कैरी सिचुएशन। इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? तो स्कैरी माने भाई आप डर जाओगे तो तुरंत इमरजेंसी रिएक्शन दोगे। तो इमरजेंसी सिचुएशन, या आप कह सकते हो बेटा स्कैरी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो स्कैरी सिचुएशन में आप के पास है एड्रेनलिन हार्मोन। क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन। कहां से रिलीज होता है? एड्रीनल ग्लैंड से। बहुत सिंपल सी बात है ये, खैर एड्रीनल ग्लैंड से बेटा।
अब कह रहा है राइट टू रिस्पॉन्सेज ऑफ ह्यूमन बॉडी रेडी टू डील सच सिचुएशन। अगर ऐसा हो गया तो एड्रेनलिन क्या करेगा आपकी बॉडी में, ऐसा क्या दो रिस्पॉन्स देगा? तो सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या देगा? ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर दीजिए, 14 के बी का आंसर। तो पहला रिस्पॉन्स ये देगा, पहला रिस्पॉन्स देख लेते हैं बेटा। पहला रिस्पॉन्स देगा कि आपकी जो फास्ट हो जाएगी, क्या फास्ट हो जाएगी? हार्ट रेट। आपकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। दूसरा क्या देगा? जब हार्ट रेट फास्ट होगी तो ब्लड तेज पंप होगा। हार्ट रेट फास्ट होगी तो क्या होगा? ब्लड बीपी हाई हो जाएगी, ब्लड पंप होने लगेगा और बीपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पे जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्या होगा? जब बीपी आपकी इंक्रीज होगी तो आपके बॉडी में से जितने ग्लूकोज हैं, आपकी बॉडी तुरंत लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का डिमांड करेगी और जितने ग्लूकोज रहेंगे वो तुरंत एटीपी बनाएंगे ताकि आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़े और आप उस स्कैरी सिचुएशन से फाइट कर सको। तो आपका दूसरा जो रिस्पॉन्स रहेगा वो रहेगा कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई होने लगेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल ये हाई होने लगेगा और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, O2 की डिमांड तुरंत बढ़ जाएगी, क्योंकि O2 के ही प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं। अरे भाई जो ग्लूकोज आपका C6H12O6 यही है ना, और O2 जब इसको दोगे तो यहाँ से तुरंत CO2 आप रिलीज करोगे, H2O रिलीज करोगे और 38 अमाउंट ऑफ ATP रिलीज होगा। ये रिएक्शन बेसिक रेस्पिरेशन रिएक्शन है। यहाँ पे आप लिख सकते हो रेस्पायरेशन रिएक्शन। तो ये फास्ट होने लगेगा आप में, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स क्यों देना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट है, हाँ, किडनी हेल्प्स टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड वेरियस मेटाबोलाइट इन वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी। तो ऑस्मो रेगुलेशन करता है किडनी, आप जानते ही हो, बेसिक सी बात है। नॉर्मली किडनी फिल्टर अबाउट 180 लीटर ऑफ फ्लूइड डेली, बट द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअली एक्सक्रीट आउट 1 से 2 लीटर। यानी हमारी किडनी 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है और रिलीज कितना हम वाटर करते हैं? 1 से 2 लीटर यूरिन रिलीज करते हैं। म्यूकोयूरेशन 1 से 2 लीटर होता है। अब एक पेशेंट है, उसको डायलिसिस करके बचाया जा रहा है। कंडीशन क्या दिया गया है कि पेशेंट है, उसको डायलिसिस करके बचाया जाए। तो राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। तो 15 पे आते हैं बेटा, बहुत ईजी है। 15 पे आते हैं, तो नेफ्रॉन्स है हमारे पास और नेफ्रॉन्स का सबसे पहला पार्ट होता है बाउमन्स कैप्सूल। तो ये कह रहे हैं कि बाउमन्स कैप्सूल का आप स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो बाउमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप जानते हो? ऐसा स्ट्रक्चर है बाउमन कैप्सूल का, ऐसा ही तो होता है भाई। तो बाकी ये फर्दर आगे एग्जीक्यूट करता है, ये ऐसे है, ये आगे बेटा, आगे ये ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, हेनले लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड फर्दर कलेक्टिंग डक्ट्स। तो जो इतना वाला पार्ट है, ये हेनले लूप हो गया, ये DCT हो गया, ये क्या हो गया? कलेक्टिंग डक्ट्स हो गए। जो इतना वाला पार्ट है यहाँ से, ये है बाउमन कैप्सूल। तो पहला पूछ रहा है कि बाउमन कैप्सूल का स्ट्रक्चर बना दिए, तो बाउमन कैप्सूल हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा साइड में बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ से यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब बाउमन कैप्सूल का एक, जो बाउमन ही पूछा सिर्फ बाउमन बना देते हैं, तो एक बाउमन बना लेते हैं। तो जब आप एक बाउमन ऐसे बनाओगे, ठीक है, ऐसे एक बाउमन बना लो, यहाँ से ऐसे छोड़ दो, फर्दर के लिए बाउमन बना लेते हैं। अब बाउमन में कुछ सेल्स होती हैं बेटा, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ सेल्स होती हैं, पोडोसाइट्स। क्या होती हैं? पोडोसाइट्स। सेल्स एंड सेल्स में न्यूक्लियस भी होगा, नहीं होगा? होगा। ये क्या हो गया? हमारे पोडोसाइट्स हो गए, ठीक है। तो और जो बाउमन कैप्सूल होता है वो 0.5 mm थिकनेस होती है उसकी, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को
नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे कंट्रोल होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से होता है। तो इसका पहला काम क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कब होगा? जब इसके ऊपर ऐसे बेटा आर्टरी ऐसे ऐसे इसके ऊपर रन कर जाएगी। अब इधर का जो डायमीटर है हमने ज़्यादा कर दिया, इधर का डायमीटर कम कर दिया, तो जब ब्लड ज़्यादा अमाउंट में आएगा और जाएगा कम अमाउंट में, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ से ब्लड फिल्टर होके फर्दर आगे पीसीटी डीसीटी या फर्दर मोड सब में चला जाता है। तो वॉमन कैप्सूल का फंक्शन क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, आपको इतने पे एक नंबर आराम से मिल जाएगा। दूसरे पे आते हैं, आल्दो किडनी फिल्टर द लार्ज अमाउंट ऑफ 180 लीटर स्टील, 1 से 2 लीटर ही डिस्चार्ज करता है। तो ये मैं ए का आंसर बता दिया। बी पे आते हैं। बी में कह रहा है कि 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। और क्यों ह्यूमन सिर्फ 1 लीटर से 1 से 2 लीटर यूरिन बनता है, 1 लीटर से 2 लीटर यूरिन डिस्चार्ज करता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे नेफ्रॉन्स में बेटा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि हमारे ब्लड में कौन से आयन कितने अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, कौन से आयन कितने अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, कौन से आयन नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, कौन से को फिल्टर करना है, किसको नहीं करना है, इन सब को, जैसे ग्लूकोज हुआ, जैसे शुगर हुआ, जैसे साल्ट हुआ, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन बॉडी करती है। तो जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल बता दे रहा हूँ, अब आपके स्तर की बात नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये हेलने लूप है। अब ये 1 से 2 लीटर क्यों हुआ? यहाँ से फिल्ट्रेशन हुआ, पीसीटी में गया, पीसीटी से जब हेलने लूप में फिल्ट्रेट आया, अब यहाँ हेलने लूप है बेटा। हेलने लूप के आसपास ऐसे एक और आर्टरी जाती है जिसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। क्लियर? और ये हो गया हेलने डिसेंडिंग और असेंडिंग। जो डिसेंडिंग है ये H2O के लिए फिल्टर है। मान लो बहुत ज़्यादा अगर वाटर रिलीज हो जाएगा, बहुत यूरिन कर लो, तुम्हारे बॉडी में वाटर का अमाउंट कम होने, डिहाइड्रेट हो जाओगे, वाटर का अमाउंट कम होने लगेगा, डिहाइड्रेट हो जाएगी। और वहीं बहुत ज़्यादा साल्ट अगर लिए बीपी लो हो जाएगी, तो साल्ट भी एक बैलेंस्ड मेरी होना चाहिए रिलीज। तो इधर जो ये वाला है ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है और ये वाला साल्ट का करता है, जैसे सोडियम हुआ, जैसे ग्लूकोज हुआ, जैसे बाइकार्ब हुआ। तो सिंपल सा ये है। तो इसी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? बैलेंस होता है। 1 नंबर इतने मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द एक्सक्रीशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीशन मीन्स, सिंपल सा डेफिनेशन आप जानते हो, एक्सक्रीशन का सिंपल सा डेफिनेशन आप जानते हो, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। जैसे आपके बॉडी में आपके लीवर में ऑर्थिनीन साइकिल चलती है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी, उसी को कहते हैं। उसके लिए एक सिस्टम देगा बॉडी में, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल मतलब जैसे यूरिया हम लोग रिलीज करते हैं तो हम लोग क्या हो गए? यूरियोटेलिक हो गए। फिशेस अमोनिया रिलीज करती हैं, फिशेस सबसे ज़्यादा, तो अमोनोटेलिक हो गई। तो यही सब बातें हैं। तो ये एक्सक्रीशन का डेफिनेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब आते हैं इंपॉर्टेंस। तो ऐसे आप हेडिंग बहुत ही क्लियर कट लिखा करो। इंपॉर्टेंस पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंस में देखते हैं बेटा क्या है? टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ आवर फ्लूइड सिस्टम ऑफ बॉडी, तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट द सिमिलरिटी बिटवीन लंग्स एंड, फेफड़े में और किडनी में क्या क्या सिमिलरिटी है? तो प्यारे बच्चों, फेफड़े और किडनी में क्या क्या सिमिलरिटी है ये समझिए।
तो 15 का C और करके दे दिया है ना, तो 15 का ये भी C ही था, अब इस पे भी आ जाते हैं 15 का C। ऐसे स्पष्ट पहली बात जब ऐसे लिखा करिए तो ऐसे एकदम पूरा ऐसे आंसर ऐसे कॉपी में एकदम बिल्कुल क्लियर कट लिखिए। और मैं खुद यहाँ गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे सेंटर में लिखना है। ये सब बातें खैर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे आप स्पष्ट लिखा करिए। आंसर 15 का जो है C, और C में और वाला सेक्शन है तो C में फिर ये ऐसे कर देंगे, और जब आप लिखेंगे तो और टीचर समझ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लंग्स, और यहाँ पे आते हैं हम ये किडनी। इन दोनों में सिमिलरिटीज पूछ रहा है, इन दोनों में क्या पूछ रहा है, सिमिलरिटीज पूछ रहा है बेटा। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों का सबसे पहला काम है रिमूवल ऑफ वेस्ट। आपके नाक में धूल चल जाए, आपको छींक आने लगती है, रिमूवल ऑफ वेस्ट पहला काम तो ये है। और दूसरा काम लंग्स ब्लड पे वर्क करता है, किडनी भी ब्लड पे वर्क करती है। दोनों हमारे बॉडी का क्या मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस। तो मेंटेन करते हैं दोनों ऑस्मोटिक बैलेंस, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। दो फंक्शन आपने सिमिलरिटी बता दिया, इनफ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तो इसको देख लो, हम थोड़ा हट जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16 का ये, सुगर केन डू नॉट प्रोड्यूस सीड, सो नेम द प्रोसेस थ्रू विच इट विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो जो सुगर केन है 16th का ए, तो आते हैं 16th, तो इसको फिर वैसे ही लिखना है जैसे अभी बताया हूँ। फिर आते हैं 16th का ए, ऐसे आप लिखिए एग्जाम में, आंसर 16th और यहाँ पे ए। अब इस ए का पहले का आप आंसर दे रहे हो तो ए का ऐसे पहला मेंशन कर दो, ठीक। अब उसमें कह रहा है सुगर केन डू नॉट प्रोड्यूस बाय विच प्रोसेस। अब शुगर केन है तो शुगर केन सीड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो कैसे प्रोड्यूस करता है, तो सीधी सीधी बात है, शुगर केन को काट काट के लगा देते हैं छोटा छोटा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लिस्ट एनी टू एडवांटेज। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एडवांटेज क्या है, दो चीजें। पहला, आपकी जो वाइल्ड वैरायटी, वाइल्ड या जो प्योर वैरायटी है, प्योर वैरायटी आपकी वही रहती है, प्योर वैरायटी में नो म्यूटेशन, नो चेंजेस, ठीक है, प्योर वैरायटी ही रहती है, असली अच्छी बात ये है। और दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इजी अप्रोच है, इजी अप्रोच है, और इसमें सीड फॉर्मेशन या इसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, वेरिएशंस नहीं होते हैं, नहीं माने नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, वेरिएशन नहीं है तो क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा टू देयर पेरेंट, जेनेटिकली आइडेंटिकल, इसी कारण तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा टू पेरेंट्स। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज में से, दो एडवांटेज में से एक है। नेक्स्ट बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि बिसाइड द शुगर केन टू मोर एग्जाम्पल, शुगर केन के अलावा और दो कैसे कौन से एग्जाम्पल हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो आप फिर ऐसे लिखेंगे, आंसर 16 का ए का, 16A का थर्ड वाला। तो जब इसको ऐसे राइट डाउन करना शुरू करेंगे आप, तो आप दो एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। तो एक लिख सकते हैं पोटैटो, पोटैटो को भी ऐसे लगा दिया जाता है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। एक लिख सकते हैं जिंजर, और हल्दी का टर्मरिक, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टर्मेरिक हो गया है। वहीं पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने वाले जैसे ब्रायोफाइलम हुआ, ब्रायोफाइलम भी कर सकते हो, लीफ से मॉडिफाइड होते हैं सब। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके, ये अदर देन शुगर केन रीजनरेशन के। इसके बाद जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ वाला मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जो 16th का फोर्थ वाला है, ए का फोर्थ वाला है, वो कह रहा है कि वाई रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल इन एनिमल्स में बेटा,
एनिमल्स में रीजनरेशन की होता है, रीजनरेशन एनिमल्स में कुछ कुछ एनिमल्स हैं जिनमें रीजनरेशन होता है, जैसे प्लेनेरिया है, एक बेसिक सा एग्जांपल है आपके पास प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, लेकिन पॉइंट क्या है कि मान लो कि आपके पास ये प्लेनेरिया हो गया, अब इस प्लेनेरिया को कहीं से भी आप कट कर दोगे तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, कहीं से कट कर दोगे न्यू वन बना लेगा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लेनेरिया बना लेगा। तो एनिमल सेल में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, जिसको एनिमल सेल नीड स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड सेल इनके पास होना चाहिए। जैसे प्लेनेरिया में नियोब्लास्ट है, और ब्लास्ट माने इमेच्योर, किसी सेल के नाम के आगे ब्लास्ट आ गया तो नहीं इमेच्योर है, तो नियोब्लास्ट सेल। तो नियोब्लास्ट सेल, तो ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल सभी एनिमल्स में नहीं होते हैं, इसीलिए ऑल टाइप ऑफ एनिमल नहीं लिखा है, कुछ स्पेसिफिक एनिमल होंगे जिनमें रीजनरेशन होगा। तो आप लिखेंगे कि एनिमल सेल नीड, एनिमल यहाँ से एनिमल नीड सम स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड नियोब्लास्ट, स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड नियोब्लास्ट। तो ये हो गया, तो ये आपका 16A हो गया। आप 16B पे आते हैं हम लोग, तो आते हैं फिर ऐसे आप लिखिए आंसर 16, फिर लिखिए B, फिर ऐसे। अब 16B पे आते हैं, उसमें लिखा है इन एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर fertilization is said to be takes place in the male gamete carried by pollen tube fuse with the female gamete present in embryo sac. This result of lots of the changes of different part of the flower state. The changes take place in the flowering structure of the flower after food fertilization. पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेज होंगे, जैसे तो कुछ विशेष स्ट्रक्चर दिया उनके बारे में पूछ रहे हैं। जैसे ए जाइगोट दिया है, बी ओव्यूल दिया है, सी ओवरी दिया है, और है डी सेपल्स दिया है। तो ये सब स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, यही पूछ रहा है, तो बता दे रहे हैं। जाइगोट किसमें कन्वर्ट होगा, जाइगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट किसमें कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। ओब्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, ओब्यूल टर्न्स इनटू सीड में। ओवरी किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रूट में। सेपल्स किसमें कन्वर्ट होंगे, सेपल्स किसमें कन्वर्ट होंगे। अब देखो ये फ्रूट पे डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, लेकिन ये क्या होते हैं, जो ये फ्रूट के ऊपर जो छिलके पाए जाते हैं या थैलेमस कह सकते हैं आप, तो थैलेमस और सेपल्स ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। तो सेपल्स आप एसेसरी रोल कंसीडर कर लो, एसेसरी रोल में ये पाए जाते हैं, तो ये उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन जर्मिनेशन। तो 16th के बी का सेकंड वाला क्या है, जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या होता है बेटा, the process by which a particular seeds become sprouted and a plumule will be developed. This overall process is called germination. तो आप ऐसे लिखोगे the process by which seeds produces क्या प्रोड्यूस करेगा, by which seed produces plumule, या आप कह सकते हो स्प्राउट, स्प्राउटेड सीड होता है ना, स्प्राउटिंग, तो स्प्राउटिंग कॉल्ड जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग कॉल्ड। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे वेट माने नमी कितनी है मीडियम में, टेम्परेचर मीडियम का कितना है, तो ये सब चीज़ें जर्मिनेशन को इफेक्ट करती हैं। तो ये हो गया। सो थैंक्स फॉर कोऑपरेशन गाइज, एंड योर टॉपिक विल बी ओवर।
बायोलॉजी का यूनिट ओवर हो गया है और ये राइट आंसर्स हैं, आप मिला लीजिए और जो भी आप करके आए हैं उसको देख लीजिए। और पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से बेस्ट विशेस।